شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ وادی میں سردی کا قہر جاری، شمال درجہ حرارت 5.4 منفی تک ہوا درج۔ اگلے 15 روز تک وادی کے موسم میں بدلاؤ کے کوئی آثار نہیں، سردی کا زور رہے گا برقرار، محکمہ موسمیات۔ محکمہ تعلیم نے سرمائی تعطیلات کا کیا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے آج سول سیکریٹریٹ میں ریونیو محکمے کے زیر تکمیل منصوبوں کا لیا اعلیٰ سطحی میٹنگ میں جائزہ۔ لال چوک، پارمپورہ اور ڈلگیٹ TRC فلائی اوور کا منصوبہ تاخیر کا شکار، عوام نالام۔ اور بھی کئی موضوعات ہیں۔ آج سے میڈیم ویو 268.81 میٹر، FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، وادی میں خشک موسم کے بیچ شبانہ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے مسلسل نیچے ریکارڈ ہونے کی وجہ سے ٹھٹھرتی سردیوں کا زور برقرار ہے اور اس وجہ سے عام لوگ سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وادی میں جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیان اضلاع سرد ترین علاقے رہے، جہاں گزشتہ شب درجہ حرارت کم سے کم -5.0 اور 5.4 ریکارڈ ہوا۔ وادی کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم از کم درجہ حرارت -4.4، جبکہ گلمرگ میں شبانہ درجہ حرارت -1.2 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں درجہ حرارت -3.1 ڈگری، سری نگر کے ہوائی اڈے پر درجہ حرارت -4.2 ڈگری، کپواڑہ میں -3.4، کازی گنڈ میں 3.0 منفی، بارامولہ اور بانڈی پورہ میں -4.3 اور 3.8 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ ادھر مرکزی زیر انتظام علاقہ لداخ کے لیہ اور کرگل اضلاع میں درجہ حرارت -8.5 ڈگری اور 8.8 ڈگری تک ریکارڈ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 10 روز تک موسم میں کسی بدلاؤ کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ اس دوران وادی میں خشک موسم کے بیچ شبانہ درجہ حرارت میں گراوٹ کے باعث بجلی کی سپلائی بھی اثر انداز ہے اور صارفین کو غیر اعلانیہ کٹوتی اور بجلی کی آنکھ میچولی کا سامنا ہے۔ شدت کی سردی کی وجہ سے صبح و شام بڑے بزرگوں کو گھروں سے باہر آنے جانے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں، جبکہ کئی لوگ نزلہ زکام اور کھانسی کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ادھر وادی میں روایتی طور گلمرگ اور پہلگام جیسے سیاحتی مقامات پر درجہ حرارت میں سب سے زیادہ گراوٹ درج ہوا کرتی تھی، مگر اس سال سردی کا زیادہ اثر جنوبی اور وسطی کشمیر میں دیکھا گیا اور سب سے زیادہ منفی درجہ حرارت گزشتہ ایک ہفتے کے دوران انہی علاقوں میں درج ہوا۔ سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق خشک موسم کی وجہ سے رات کے وقت درجہ حرارت میں زیادہ گراوٹ آ رہی ہے، جبکہ اگلے 15 روز تک وادی میں موسم میں کسی بدلاؤ کی کوئی امید نہیں اور لوگوں کو مزید سخت سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ابھی موسم جو ہے مسلسل ڈرائی چل رہا ہے پورے جموں کشمیر کے اندر، اور آنے والے دنوں میں بھی فی الحال کوئی فوکاس نہیں ہے بارش یا برف باری کے حوالے سے، تو آنے والے دنوں میں بھی موسم لگ بھگ 10 دسمبر تک فی الحال ڈرائی رہ سکتا ہے، اور اس بیچ خاص طور 2-3 کے درمیان اور 5-6 کے آس پاس بھی تھوڑا سا فیبل WD کے قحط موسم تھوڑا سا ابر آلود ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی ویدر کی ایکٹیویٹی کے چانسز بہت کم ہے، تو ویدر ایک حساب سے ڈرائی ہی رہنے کے چانسز ہیں لگ بھگ 10 دسمبر تک، اور اس بیچ سردی میں بھی کافی زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے اور ٹھنڈ میں آنے والے دنوں میں اور اضافہ ہونے کے امکانات ہیں، تو صبح شام دھند کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ جو ہے برقرار رہے گا اور آنے والے دنوں میں اور بڑھنے کے چانس ہیں۔ باقی فاگ اور جو ویزیبلٹی ہے وہ ابھی شالو فاگ کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ فاگ چل رہا ہے، تو کمنگ ڈیز میں فردر جو ہے ویزیبلٹی اور ریڈیوس ہو سکتا ہے، فردر پور ہو سکتا ہے، تو آنے والے دنوں میں فاگ جو ہے ماڈریٹ ٹو ڈینس فاگ بھی جو ہے کچھ ایک جگہوں پہ رہ سکتا ہے۔ اوور آل جو ہے سردی کی لہر جو ہے برقرار رہے گی آنے والے دنوں میں بھی، اور موسم جو ہے ڈرائی رہ سکتا ہے لگ بھگ 10 دسمبر تک۔ جب بھی ہم مائنس ٹیمپریچر کی کشمیر میں بات کرتے تھے تو پہلے نمبر پہ گلمرگ آتا تھا، پھر پہلگام آتا تھا کشمیر ویلی میں۔ آج تو کبھی بڈگام میں -4 ہوتا ہے، کبھی شوپیان میں -4 ہوتا ہے، تو یہ چینج کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، اس میں دیکھو خاص کر جو ہل اسٹیشن ہے، پہلگام کی بات کریں یا گلمرگ کی بات کریں، ان جگہوں پہ دن میں اچھی خاصی دھوپ رہتی ہے اور جو دن کا جو درجہ آتا ہے وہ بھی کافی اچھا خاصا رہتا ہے، تو اس حساب سے جو ہے ٹیمپریچر اتنا زیادہ گر نہیں پاتا ہے جتنا خاص کر ویلی کے اندر یا سینٹرل کشمیر کے خاص کر سری نگر کی بات کریں، بڈگام کی بات کریں یا آس پاس کے جو ڈسٹرکٹ کی بات کریں، ان جگہوں پہ جو ہے کولنگ جو ہے کافی زیادہ ہوتا ہے، دن میں زیادہ بھی ہے اور کولنگ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاگ اور جو ڈسٹ پارٹیکلس ہے اس کے کارن بھی جو ہے آپ کا ری ریڈیشنل کولنگ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو ٹیمپریچر جو ہے خاص کر سینٹرل کشمیر کے اندر جو ہے کافی زیادہ ڈپ ہو جاتا ہے۔ یہ تھی محکمہ موسمیات
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट में रेवेन्यू महकमे के ज़ेर तकमील मनसूबों का जायजा एक आला सतही इजलास में लिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंशियल कमिश्नर शालीन कबरा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला धीरज गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। मुख्तलिफ अजला के अफसरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शमूलियत की। सेक्रेटरी रेवेन्यू ने इजलास में 18 बड़े तामीराती मनसूबों पर तफसीली प्रेजेंटेशन पेश की, जिनमें तहसील और नायाबत दफातर, रिहायशी क्वार्टर, मिनी सेक्रेटेरिएट और रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। ये मनसूबे रामबन, कठवा, पुंछ, डोडा, उधमपुर, रियासी, बांडीपुरा, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर में जारी हैं। जायजे में फंड्स की फराहमी में ताखिर, इंतजामी मंजूरियों के इल्तिवा और बाज़ मकामात पर कानूनी मसाइल को रुकावट करार दिया गया। वज़ीर आला ने बाकी मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने पर जोर दिया और कानूनी रुकावटों को दूर करने की ताकीद की। वज़ीर आला ने इस मौके पर यकीन दिलाया कि हुकूमत ज़ेर इल्तिवा कामों की हमवार तकमील के लिए तमाम तर मुआवनत फराम करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाना जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और गुड गवर्नेंस के लिए कलीदी हैसियत रखता है। समिन शहरी श्रीनगर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के मकसद से बनाए गए नौगाम और रावलपुरा फ्लाईओवर मुकम्मल हो चुके हैं और उन्हें जल्द अवाम के नाम वक्त किया जा रहा है, जबकि बिमना में बनाया गया फ्लाईओवर पहले ही काबिल इस्तेमाल बना दिया गया है। ये तीनों फ्लाईओवर मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं। अलबत्ता लाल चौक से पारमपुरा और डलगेट से टीआरसी फ्लाईओवर पर अभी भी इब्तिदाई तौर काम शुरू नहीं हो सका है। इस हवाले से सईद यासिर की रिपोर्ट सुनते हैं। श्रीनगर शहर इसके मुजाफाती इलाकों में लगातार हो रही ट्रैफिक जामिंग पर काबू पाने के सिलसिले में कई नए फ्लाईओवर तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें से श्रीनगर शहर में सबसे बड़ा फ्लाईओवर भी शामिल है, जो कि जहांगीर चौक से पारिमपोरा तक तामीर किया जाएगा। इस 4 गलियारों वाले फ्लाईओवर पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस नए फ्लाईओवर के तामीर होने से जहांगीर चौक, बटमालू, कमरवारी और पारिमपुरा बस अड्डे के बाहर जो ट्रैफिक जाम लगातार हो रहा था, उस पर इस फ्लाईओवर के बनने से काबू पाया जा सकता है। इसी तरह आने वाले दिनों में बिमना से नौगाम तक जो 3 फ्लाईओवर कौमी शाहरा पर तामीर हो रहे हैं, उनमें से सनत नगर का फ्लाईओवर भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इस फ्लाईओवर के बनने से सनत नगर बाईपास पर जो बदतरीन ट्रैफिक जाम रोज रोज हो रहा था, उस पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह नौगाम बाईपास पर तामीर हो रहे फ्लाईओवर पर भी काम आखिरी मराहिल में है। बिमना का फ्लाईओवर पहले ही गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। बिमना बाईपास पर इस फ्लाईओवर के तामीर होने से ट्रैफिक जामिंग पर पूरी तरह से काबू पाया गया है। अगरचे रियासती हुकूमत ने डलगेट से लाल चौक तक जो ट्रैफिक जामिंग हो रही है, उस पर काबू पाने के सिलसिले में डलगेट से लाल चौक तक 4 गलियारों वाले एक बड़े फ्लाईओवर का तामीर का मंसूबा बनाया था, मगर इस फ्लाईओवर पर अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। इसी तरह जहांगीर चौक से रामबाग तक जो फ्लाईओवर तामीर किया गया है, उसका पूरे मकासद अभी तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि रामबाग क्रॉसिंग के मुकाम पर लगातार ट्रैफिक जामिंग हो रही है। मुकामी बाशिंदों ने मांग की है कि इस अहम फ्लाईओवर को बागी महताब तक एक्सटेंड किया जाए, तभी इसके पूरे मकासद पूरे हो सकते हैं। श्रीनगर की अहम सड़कों, जिनमें मौलाना आजाद रोड, रेजिडेंसी रोड, श्रीनगर के पुराने शहर की कई सड़कें शामिल हैं, रोजाना खास तौर पर शाम के औकात बदतरीन ट्रैफिक जामिंग हो रही है, जिस पर काबू पाने के सिलसिले में फ्लाईओवर ही एक मुतबादिल साबित हो रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने फैसला किया है कि श्रीनगर के साथ साथ वादी के दूसरे इलाकों में भी फ्लाईओवर तामीर किए जाएंगे। जल सतह मुकामात पर भी मागाम, संग्रामा इलाकों में फ्लाईओवर तामीर किए जा रहे हैं, जहां रोज रोज ट्रैफिक जामिंग हो रही है। आपने सईद यासिर की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौजू। रमेश मराठा के मुताबिक कठवा जिले के मल्हार इलाके में 9 माह कबल 3 रिश्तेदारों की पुरअसरार मौत के बाद लवाकी ने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मुजाहिरीन ने पुलिस और इंतजामिया पर इंसाफ फराम करने में नाकामी का इल्जाम लगाया और ये मामला सीबीआई के सुपुर्द करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि मार्च महीने में शादी की तकरीब के लिए रवाना हुए 15 साला वरुण सिंह, उनके चचा योगेश सिंह और मामू दर्शन सिंह की लाशें 3 रोज बाद इशो नाला के आबशार से बरामद हुई थी। इस साने के बाद मुतासरा खानदान के अफराद ने इंसाफ में देरी को लेकर अपना एहतजाज शुरू कर दिया है। अब एक और मौजू।
मोहम्मद तस्कीन के मुताबिक मरकजी वजारत बराए माहौलियात और जंगलात ने जिला रामबन की तहसील बानिहाल के गांव टंगर में मुजवजा 856 मेगावाट सावलाकोट पन बिजली प्रोजेक्ट को माहौलियाती मंजूरी दी है। महकमे की जानिब से जारी एक इतला के मुताबिक ये मंजूरी वजारत माहौलियात और जंगलात हुकूमत हिंद की जानिब से जारी की गई है। इस मंजूरी को जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े पन बिजली प्रोजेक्ट में एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में इलाके की तवानाई जरूरत को पूरा करेगा और इस प्रोजेक्ट से इलाके के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। गांधरबल जिले के पेट कोंडल इलाके में सड़क का एक हिस्सा गुज़श्ता माह ढह जाने से इलाके के लोगों को गूनागूं मसाइल का सामना है। बताया जाता है कि सड़क पर ट्रैफिक की नकलो अमल बंद हो जाने से आसपास के कई देहात का राब्ता मजदूद होकर रह गया है। एक रिपोर्ट रहीम रिजवान से। गांधरबल जिला के पेटकोंडल शालबुग इलाके के लोगों ने इलाके में गुज़श्ता माह सड़क का एक हिस्सा ढह जाने के बाद दोबारा तामीर न करने पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि 9 अक्टूबर सुबह 7:15 बजे इलाके में जाने वाली सड़क पेटकोंडल के मकाम पर अचानक ढह गई, जिसके नतीजे में सड़क का एक बड़ा हिस्सा नाले सिंध में ढह जाने से मुख्तलिफ इलाके एक दूसरे से मुनक़ता हो गए। हालांकि सड़क के आर पार इलाके के तलबा को स्कूल जाने के लिए दीगर लंबी राहें इख्तियार करनी पड़ती हैं, जबकि बुजुर्ग लोग तब से नमाज पढ़ने के लिए मकामी मसाजिद में नहीं जा पाते हैं। इलावा अजी आसपास के लोगों को अबूर मरूर में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने मौजूदा सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उस रोज जो ही ये वाक़ा पेश आया तो मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी कारकुनां ने यहाँ आकर मगरमच्छ के आंसू बहाए, जबकि इंतजामिया के अफसरान ने भी यकीन दहानी की थी कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सड़क तामीर की जाएगी। मगर 2 माह गुजर जाने के बावजूद किसी एक फर्द ने यहाँ आने की जहमत गवारा न की और न ही सड़क का तामीरी काम शुरू किया गया। हालांकि मौजूदा सरकार के एहलकारों ने उसी रोज फंड्स वागुजार कराने के दावे भी किए। न जाने वो फंड्स किस खाते में चले गए और वो सब वादे खराब साबित हो चुके। अब मकामी लोगों ने तहिया कर लिया कि अगर चंद रोज तक ये सड़क तामीर कराने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो वो खुद घर घर जाकर चंदा जमा करके इस सड़क का तामीरी काम शुरू करेंगे। इस जिम्मन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B गांधरबल इंजीनियर आरिफ मोहम्मद इकबाल ने शहरबीन को यकीन दहानी की कि वो कल खुद स्पॉट पर जाकर सड़क का स्टेटस देखकर ही फैसला लेगा कि सड़क की बहाली के लिए किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों को चलने फिरने का मौका फराहम किया जाए और बाद में ये सड़क तामीर की जाए। दरी असना दरिन से कमरिया चौक गांधरबल तक आए रोज ट्रैफिक जामिंग की वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। सरकारी मुलाजिमीन, तलबा, बीमार और तिजारत पेशा अफराद को ये 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कई घंटे गाड़ियों में गुजारने पड़ते हैं और वो कभी भी वक्त पर अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि सड़क की तंगी की वजह से कमरिया चौक, दोदरहामा, बिहामा और दरिन में जबरदस्त ट्रैफिक जैम रहता है। लोगों को इस ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलाने के लिए 2007 से सरकार और जिले इंतजामिया अदम तवज्जोही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसके बाइस न सिर्फ गांधरबल के लोगों बल्कि लेह लद्दाख जाने वाले मुसाफिरों, बांडीपोरा, गुरेज, तुलेल, बारामूला और श्रीनगर जाने वाले लोगों को भी गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवामी हल्के बार बार मुतालबा करते हैं कि दरन से कमरिया चौक तक सड़क को कुशादा करने के लिए पूरी इकदाम की जानी चाहिए। आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। शेरबीन जारी बार खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट बलीसी ने अपने एक बयान में कहा कि भले से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। बुनियादी ढांचा न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना रहता है। मोहम्मद इकबाल भट्ट बलीसी के मुताबिक हालिया शदीद बारिशों से तकरीबन 220 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा था, मगर अभी तक 70 माइल के मकानात को ही मुआवजा दिया गया है और बाकी मानदा लोगों को हनूज मुआवजे का इंतजार है और वो खुले आसमान तले अपनी जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि मुआवजा फौरी तौर वागुजार कराया जाए। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने शार्लेटिंग यूनानी अस्पताल के मुलाजमीन की 4 माह से रुकी पड़ी तनख्वाहों के मामले पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। इजा के सदर और सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर फयाज अहमद शबनम ने अपने एक बयान में कहा कि मुलाजमीन हजारों मरीजों को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, मगर तनख्वाहों में मुसलसल ताखीर से वो परेशान हैं और उनके अहल खाना भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस मामले को तरजीह बुनियाद पर हल किया जाए और अस्पताल में बाकायदा तनख्वाहों की वागुजारी
यकीनी बनाई जाए। अब एक और मौजूद। समीर जम्मू कश्मीर में शोबे सेहत में गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान काफी काम हो चुका है। नए मेडिकल कॉलेज कायम करने के साथ साथ जगह जगह अस्पतालों का कयाम भी अमल में लाया गया है, मगर जिस तनासब से आबादी में इजाफा हो रहा है उसके मुताबिक तिब्बी सहूलियात दस्तियाब कराने के हवाले से अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में इस वक्त सबसे बड़ा मसला तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कमी और अमले की कमी के बाइस स्टाफ पर बढ़ता दबाव है और बाज मरीजों को भी इस हवाले से परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अस्पतालों में जदीद सहूलियात खासतौर मशीनरी के हवाले से भी बीमारों को तरह तरह के खदशात हैं। जहां अमला है वहां मशीनरी नहीं, अब जहां मशीनरी दस्तयाब कराई गई है वहां उसे चलाने का कोई इंतजाम नहीं है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ में भी अवाम को तिब्बी सहूलियात बहाल रखने के लिए सरकार की तरफ से इकदाम उठाए गए हैं। किश्तवाड़ जिला सदर मुकाम पर एक जिले सतह का अस्पताल कायम है, जिसमें मुकामी व गैर मुकामी अलील लोगों व तीमारदारों का काफी रश पाया जाता है। इस शिफाखाने में बहुत सी जरूरी मशीनरी के साथ साथ मुआलजों, मुख्तलिफ जुमरा के माहिरीन और अमले की बहुत हद तक कमियां पाई जा रही है। तिब्बी एतबार से जिला में 4 ब्लॉक है, लेकिन सिर्फ अठोरी पाडर में एक बीएमओ भी तैनात है और इमारत भी मौजूद है। बाकी 3 तिब्बी ब्लॉक्स में जरूरत के मुताबिक ऑफिसर और अमला मुयसर नहीं, जबकि इन दूर दराज व पहाड़ी इलाकों में और खुसूसन मौसम सरमा में इनकी ज्यादातर जरूरत पाई जाती है। सरकार अगर वाकई रियाया को तिब्बी सहूलियात मुहैया रखना चाहती है तो फिर कुछ अमली इकदाम भी उठाने पड़ेंगे, जिनका आवाम काफी वक्त इंतजार कर रहे हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज के अलावा अब बिला ज़रर के इलाज के लिए देसी तरीका जिसे आयुष के नाम से जाना जाता है, इनके तहत चलाए जाने वाले तिब्बी मराकज में अब अच्छी तादाद में बीमारों का आना जाना देखा जा रहा है। इन मराकज में इलाज के लिए अद्वियात भी मुहैया रखी गई हैं, जो बीमारों को मुफ्त में दस्तयाब की जाती हैं। जिला किश्तवाड़ में कुल 26 ऐसे मराकज कायम है, लेकिन सिर्फ 16 डॉक्टर तैनात हैं और इनमें से एक डॉक्टर को जम्मू में अटैच करके रखा गया है, जबकि एक सेंटर के बारे में मालूम हुआ है कि इसे बटोट में खोला गया था। वहां तैनात मुलाजिम की तनख्वाह किश्तवाड़ के खाते से निकाली जाती रही है और ये भी पता चला है कि यह मरकज अब उधमपुर जिला के किसी मकाम पे खोला गया है। ये खबर दुरुस्त होने की सूरत में इस मरकज को फौरी तौर पर किश्तवाड़ में ही फिर से कायम किया जाए, अवाम की मांग है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर के तहत आने वाले तिब्बी मराकज जिनकी कुल तादाद 26 है, जो आयुष आरोग्य मंदिर के नाम से मौसम किए गए हैं और किश्तवाड़ के जिला सदर मुकाम फल्लर, सिंगरामबाड़ा, डूल, पडारनाम, मुगल मैदान, चिनगाम, सिगडी, केशवान, आपटी वाड़वन, सोंदर दक्षिण, इश्तारी पाडर, सरसल, नागपटना, कुंटवाड़ा, बडकोट, बदात, बलग्राम, कुगड़वा, कुंडल, गुलाबगढ़, मचेल पाडर, फिल्लर, किचर भोजवा, बडोत आयुष यूनिट किश्तवाड़ और पलमार में कायम है। अगरचे आयुष यूनिट किश्तवाड़ को जिला शिफाखाना किश्तवाड़ की इमारत में 2 कमरे फराहम किए गए हैं, दीगर 3 मराकज के लिए सरकारी इमारतें मुयसर रखी गई हैं, जबकि 22 मराकज मुख्तलिफ मकामात पर निजी इमारत में काम कर रहे हैं। ये इमारत यकीनन किराए पर ले ली गई होंगी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि निजी मकानात के मालिकान को कलील सा किराया दिया जा रहा है, जिसमें इजाफे की जरूरत महसूस की जा रही है। किश्तवाड़ में काम कर रहे इन मराकज में डॉक्टरी अमला की कमी के साथ साथ मेडिकल असिस्टेंट्स की भी कमी है। यहाँ मेडिकल असिस्टेंट्स की 12 आसामी यहाँ खाली पड़ी हैं, ताहम इन मराकज में काफी मिकदार में अद्वियात मुहैया रखी गई हैं। जरूरत इस अमर की है कि इस तरीका इलाज जो मकबूलियत की तरफ रवा है को आम करने के लिए बेदारी के कैंप्स का इनेकाद किया जाए, सरकारी इमारत मुहैया की जाए जो अवाम खुसूसन दूर दराज इलाकों के फैसला कुर्सी के शिकार लोगों के लिए अमदन इस्तिफादा बख्श साबित हो सकती है। अब चूंकि बर्फबारी का मौसम करीब तर आ पहुंचा है, कई महीने तक बंद रहने वाले वार्ड 1 मड़वा में डॉक्टर्स की बावजूद तैनात के कमी पाई जा रही है, जिसे दूर करने की अशद जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि बीमारों का मुमकिन तौर पर उन्हीं इलाकों में इलाज हो पाए और वो परेशान भी न हो। ये थे किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। अब एक और मौजू। सामीन, आज 22 हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा और अभामा जावेद अहमद खान और प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पांपोर शाहीना जी की नौकरी से सबकदोशी के सिलसिले में एक अलविदाई तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा शबीर अहमद खान ने की, जबकि मेजबानी के फराइज
प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल क्रू मुश्ताक अहमद डाट ने की। इस तकरीब में DEPO पुलवामा और जिला पुलवामा में तैनात तमाम हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। तकरीब के दौरान जावेद अहमद खान और शाहीना जी की महकमा तालीम में दी गई खिदमात को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया और साथ ही उनकी इज्जत अफजाई की गई। अब एक और मौजू। 69वें नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025-26 के सिलसिले में आज इंटर डिस्ट्रिक्ट जोनल लेवल मुकाबले SP हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्कद हुए। तकरीब में कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ अजला से आए हुए 300 से जायद लड़के लड़कियों ने शिरकत की। प्रोग्राम का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट जिला श्रीनगर की जानिब से किया गया था। मुकाबलों में लोक संगीत, लोक रक्स, मुसाविरी, स्टोरी राइटिंग, शेर व शायरी के साथ साथ जदीद साइंसी मॉडल्स की नुमाइश की गई, जिनमें बच्चों ने भरपूर जोशो जज्बे के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ जुमरों में तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा गया, जबकि नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले शुरा को इनामात से नवाजा गया। त्राल से शबीर भट्ट की खबर है कि दिहतर की महकमा नरेगा स्कीम के तहत जॉब कार्ड होल्डरों को रोजगार फराहम करने का दावा तो करता है, मगर सब जिला त्राल के आरिपल ब्लॉक में इस हवाले से सूरत-ए-हाल इत्मीनान बख्श नहीं है और वहां के लोग बात शिकायत लेकर सामने आए हैं। जवाहरपुरा और बजाफात के लोगों का कहना है कि मनरेगा स्कीम के तहत उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से स्कीम का मकसद ही फौत हो रहा है, जबकि कई बार दी तरक्की के काम मजदूरों के बजाय मशीनों से कराए जाते हैं। 2010 में नरेगा काम चलता था। हर एक फर्द, चाहे मर्द चाहे औरत, नरेगा का काम करता। 2010 के बाद यहाँ गवर्नमेंट ने ठेकेदार राज बनाया। ठेकेदारी फिर काम करता है नरेगा का, और मजदूरा कोई काम नहीं करता है, ना औरत करती है काम, ना जवान करता है, ना बूढ़ा करता है, कोई चीज नहीं। यहाँ सिर्फ नरेगा अगर आता है वो ठेकेदारी आता है, बस ठेकेदारी के हिसाब में वो नरेगा चलता है। जहाँ भी चलता है, जहाँ भी जिस इलाके में मैं गया, मैं हर इलाके में घूमता हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ सिर्फ ठेकेदारी चलता है। वैसे में आरिपल ब्लॉक है हमारा, मैं काफी दफा ब्लॉक आरिपल ब्लॉक अफसर के पास भी गया कि भाई हमें नरेगा काम दे दो, हम नरेगा में काम करेंगे। उसने बोला कि भाई इसका टेंडर निकलेगा, टेंडर में आएगा, जो जिसके नाम टेंडर में आएगा वो काम करेगा, तो आप कैसा काम करेंगे। ये मैंने कहीं बाहर गया मैं ब्लॉक अफसर के पास, उसने अपने तरीके से अपने बंदे रखे होते तो, लेकिन ये रोड निकली है, ये भी सर ब्लॉक की निकली है, यहाँ मशीन आई है, मशीन ने निकाली है। ये सर इस तरफ हमारी दूसरी रोड निकली है, तो ये भी ब्लॉक के जरिए आई है, इसमें भी मशीन ने काम किया। कोई मजदूरा किसी ने बेल नहीं उठाया, किसी ने गुंडा नहीं उठाया, किसी ने कोई काम पर नहीं गया, कोई चीज नहीं, यहाँ कोई चीज नहीं चलती ब्लॉक का। ये हम इंडिया का, आपके थ्रू से मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा, पुलवामा DC से, दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि अगर ये नरेगा लोगों के लिए है, फिर मेरे हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि ये बंद कर दीजिए, लोगों का इसको कोई फायदा। मसला ये चीज है कि जो नरेगा स्कीम है, मरकज की स्कीम जिसको MG नरेगा कहते हैं, ये एक ऐसी स्कीम थी कि जिसमें जहाँ ये लोग रहते हैं उनके लिए काम दिए गए, वहां पर जाएंगे, अपने गाँव में कोई रास्ता बनाएंगे, या अपनी खेती है उसको ठीक करेंगे, या और कोई सिंचाई के लिए ड्रेन की जरूरत है तो ये काम करेंगे। तो इसके लिए इनको एक साल में 100 दिन बनते थे और 70 रुपया इसकी पहली रेट थी। तो उस वक्त बहुत सारे लोग आते थे, करते थे ये काम, चाहे कोई नौजवान था या कोई भी। था कि इस स्कीम में ये भी लिखा है कि अगर हमारी कोई माँ बहन बच्चे को दूध पिलाने वाली होगी, वो भी अपने बच्चे को साथ लेके वहां आएगी, और जो जॉब कार्ड जिस पर इनकी मतलब पैसे डाले जाते हैं, तो उन कार्डों की राखी करके उसको भी दिन दे दो। लेकिन उस जमाने में बहुत सारे लोग आते हैं, आता कि मैंने भी वो काम किए 60 रुपया के हिसाब से। लेकिन आज या लाडली बेटी या इसके बगैर PM किसान, इसी तरह मरकज की स्कीम को बढ़ाकर 272 रुपया किया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि डिपार्टमेंट ने, ब्लॉक डिपार्टमेंट ने इसको ठेकेदार राज में तब्दील किया। कुछ चंद लोग रखे हैं, उनको ये काम देते हैं, जहां लेबर लगाने, आप देखो ये रास्ता, में रास्ते को खिलाफ नहीं हूँ, बहुत खुश हूं कि रास्ता बना, मगर काश अगर इस रास्ते पर यहाँ के मेरे वो गरीब लेबर आते, जिनको शाम के लिए चाय नहीं है, जिनको शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग यहाँ आते, काम करते थे, ताकि उनको भी कुछ थोड़ा रोजगार बन जाए। इस दौरान मुतल्लिका वीडियो बासित नबी ने शहरबीन को बताया कि आरिपल ब्लॉक में नरेगा के काम ज़वाबित के तहत ही हो रहे हैं, और अगर किसी को इस ज़मीन में कोई शिकायत हो तो वो उनके साथ राबिता कर सकता है। कुलगाम से फारूक रातन ने खबर दी कि जिला कुलगाम के तकरीबन सभी इलाकों, जिनमें देवसर, होम शालीबुग, नूराबाद, काजीकुंड और इलाका कुंड के बाज देहात शामिल हैं, में बिजली की आंख मिचोली और बिजली की गैर
एलानिया और गैर मुतवक्का कटौती का सिलसिला जारी है और इस वजह से लोगों को सर्दियों के मौसम में तरह तरह की परेशानियों का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक महकमा बिजली के आला अफसरान से कई बार रुजू किया गया कि उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली दी जाए, मगर महकमा इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और इस वजह से महकमे के तई लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।